السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے۔ لیسن نمبر 6 ہے ہمارا الجمع، الدرس السادس، چھٹا سبق۔ الجمع جمع کہتے ہیں جو چیزیں دو سے زائد ہوں، چاہے وہ 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، سینکڑوں کے حساب سے ہوں یا ہزاروں کے حساب سے ہوں، وہ ساری کی ساری جمع میں ہی آئیں گی۔ عربی میں واحد کہتے ہیں کسی ایک چیز کو، باقی زبانوں کے برعکس اس میں تسنیہ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تسنیہ 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کے لیے ہم واحد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اگر 2 چیزیں ہیں تو اس کے لیے ہم تسنیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اگر وہ چیزیں 2 سے زائد ہیں تو وہ جمع کے لیے آ جاتی ہیں، ہم اسے جمع کہیں گے۔ تو جمع کی آگے سے مزید اقسام ہوتی ہیں۔ کچھ جمع ایسی ہوتی ہیں جو واحد کی اپنی اصل حالت جو جمع کے اندر برقرار رہے، وہ جمع سالم کہلاتی ہیں، یعنی وہ صحیح سالم واحد کی شکل آگے جمع تک پہنچ جاتی ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جمع سالم۔ اور ایک قسم ایسی ہوتی ہے جو واحد کی اپنی اصل حالت یا اپنی شکل صورت جو ہوتی ہے وہ جمع کے اندر جاتے ہوئے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جمع مکسر ہے، یعنی ٹوٹی پھوٹی جمع، یعنی واحد کی اپنی اصل حالت جو ہے وہ جمع تک نہیں پہنچی بلکہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، تو اس کو ہم جمع مکسر کہیں گے۔ اب جمع سالم جو ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے مسلمن کلمات میں آپ دیکھیے، سب سے پہلے ہمارے سامنے ایگزامپل کس کی آتی ہے؟ مسلمن۔ مسلمن کو اگر دیکھا جائے تو اس کے مسلمون جمع کے اندر واحد کی اپنی صحیح سالم شکل موجود ہے، یعنی واو اور نون سے پہلے اگر دیکھا جائے، مسلمون کی پوری شکل جیسی واحد کے اندر ہے ویسی ہی جمع کے اندر موجود ہے، تو اس لیے ہم اسے کہیں گے کہ یہ جمع سالم ہے۔ اور اسی طرح سے اگر نیچے دیکھا جائے تو یہ دیکھیں کافرن، ایک کافر، اور واو اور نون سے پہلے دیکھیں کہ کافرن جو واحد میں اس کی شکل تھی وہ جمع کے اندر جیسی واحد کے اندر تھی ویسی ہی جمع کے اندر موجود ہے، اور اس کو آخر میں جمع بنانے کے لیے واو اور نون کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کافرن سے کافرون، یعنی ایک کافر اور بہت زیادہ کافر۔ آگے دیکھیں عاقلن، ایک سمجھدار، ایک عاقل انسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عاقلون، یعنی واو اور نون سے پہلے عاقل کی پوری شکل واحد کی جو تھی وہ جمع کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے، تو اس لیے یہ بھی جمع سالم کی مثال ہے۔ نیچے دیکھیں جاہلن، جاہلون، یعنی واو اور نون لگانے سے پہلے جاہلون واحد کی شکل جمع کے اندر بالکل ویسی ہی ہمیں نظر آتی ہے، جاہلون واو سے پہلے پوری شکل اس کی واحد کی جمع کے اندر موجود ہے، اس لیے اب یہ کیا کہیں گے کہ یہ بھی جمع سالم کی ایگزامپل ہے۔ صالحن، صالحون، کاتبن، کاتبون، یعنی یہ سارے کے سارے کلمات جو ہم نے پڑھے ہیں اس وقت تک، یہ سارے جمع سالم کہلاتے ہیں، یعنی یہ 2 سے زائد ہیں لیکن یہ واحد کی اپنی اوریجنل حالت، واحد کی اپنی اصل حالت جمع کے اندر بالکل صحیح سالم آگے موجود ہے، تو اس لیے ہم کیا کہیں گے کہ یہ جمع سالم کی ایگزامپلس ہیں۔ یہ اوپر ہم نے کیا بات ذکر کی کہ جمع کی مزید 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک جمع سالم اور دوسری جمع مکسر، اور اس سے پہلے جمع سے پہلے
तस्निया होता है जो दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उससे पहले वाहिद है, वाहिद जो किसी एक चीज़ के लिए कलमा बोला जाता है। जैसे कसरुन महल है, मुस्लिमुन एक मुसलमान है, काफिरुन से एक काफिर है। तो अब जमा सालम की एग्जाम्पल्स के बाद हम देखते हैं कि नीचे जो एग्जाम्पल्स हमारे सामने आती हैं, तिलमीजुन, तिलमीजुन एक शागिर्द। अब इसकी जमा जो है वाहिद की, आप देखें कि जो शक्ल है वो जमा के अंदर से ही सालम मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे जब टूट फूट का शिकार हो गई तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर, अब तिलमीजुन की असल हालत जमा के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जमा सालम नहीं बल्कि जमा मुकस्सर है। इसी तरह से तलामीज़, तलामीज़ भी जमा ही है और ये भी जमा मुकस्सर है। तिलमीज़ उनकी जमा तलामीज़ा भी होते हैं और तलामीज़ भी, तो दोनों ये जमा मुकस्सर में आते हैं। इसी तरह से देखिए नीचे, तालिबुन एक तालिब इल्म, तलबतुन बहुत ज़्यादा तालिब इल्म, या तुल्लाबुन बहुत ज़्यादा तालिब इल्म। लेकिन यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि तालिब की अपनी असल हालत जो जमा के अंदर है वो नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जमा मुकस्सर है, जमा सालम नहीं है। जमा सालम की क्या डेफिनेशन है कि वाहिद की अपनी असल सूरत, अपनी असल हैत जो है वो जमा के अंदर सही सालम बरकरार रहे। लेकिन जमा मुकस्सर क्या है कि वाहिद की अपनी असल हालत जमा के अंदर जाते हुए टूट फूट का शिकार हो जाए तो वो जमा मुकस्सर हो जाएगी, जैसे अभी हम एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं। इसी तरह से नीचे देखें, तिफलुन अतफाल, तिफलुन बच्चा, अतफालुन बहुत ज्यादा बच्चे, वलदुन एक बच्चा, औलादुन बहुत ज्यादा बच्चे, कलमुन एक कलम, अकलामुन बहुत ज्यादा कलमे, किताबुन एक किताब, कुतुबुन बहुत ज्यादा किताबें, मकतबुन एक मेज, मकातिबुन बहुत ज्यादा मेजें, सूरतुन एक तस्वीर, सुवरुन बहुत ज्यादा तस्वीरें। अब यहाँ तक आप देख लें कि जितने भी हमने कलिमात पढ़े हैं, जितने भी हमने वाहिद पढ़े हैं, और उसके बाद जब हमने जमा में देखा तो उनमें से कोई भी वाहिद की अपनी असल शक्ल सूरत या अपनी असल हयात जो है वो जमा के अंदर सही सालम मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, अभी तक जितनी भी हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं नीचे पिक्चर्स के नीचे, वो सारी की सारी जमा मुकस्सर में आती हैं, और ये तस्वीरों के ऊपर जो कलिमात हैं ये सारे के सारे जमा सालम हैं। इसी तरह से आगे देखें, नाफिजातुन एक खिड़की, नवाफिजुन जमा यानी बहुत ज्यादा खिड़कियां, मंजिलुन एक घर, मनाजिलुन बहुत ज्यादा घर, गुरफतुन एक कमरा, गुरफुन बहुत ज्यादा कमरे, बेतुन एक घर, बुयूतुन बहुत ज्यादा घर। यानी यहाँ पे भी आप देख लें कि इस पूरी की पूरी लाइन में भी सब जमा मुकस्सर ही की एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे देखें, यहाँ पे कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं। जब सबसे पहली जो तस्वीर है वो क्या है, एक कुर्सी की तस्वीर है, यानी एक कुर्सी, कुर्सीयुन एक कुर्सी, कुरासीयुन बहुत ज्यादा कुर्सियां। इसी तरह से अलमुन एक झंडा, आलामुन बहुत ज्यादा झंडे। ये तवीलुन यानी बहुत लंबा, लंबे के लिए इस्तेमाल होता है, और इसकी जमा क्या होगी, तिवालुन बहुत ज्यादा लंबे, यानी बहुत ज्यादा जो लोग हैं जमा की सूरत में हैं वो लंबे हैं। अब यहाँ पे देखें नीचे, उस्ताजुन वाहिद, उसातिजातुन जमा है इसकी, बहुत ज्यादा उस्ताद, रजुलुन एक आदमी, रिजालुन बहुत ज्यादा आदमी, सिद्दीकुन एक दोस्त, अस्दिकाउन बहुत ज्यादा दोस्त, कुर्सीयुन एक कुर्सी, करासीयुन बहुत ज्यादा कुर्सियां, बाबुन एक दरवाजा, अबवाबुन बहुत ज्यादा दरवाजे, आलमुन एक झंडा, आलामुन बहुत ज्यादा झंडे, हसनुन अच्छा, हिसानुन बहुत अच्छे, यानी ज्यादा जो है मिकदार में वो अच्छे हैं, तरीकुन एक रास्ता,
तुरुकुन बहुत ज्यादा रास्ते। तवीलुन लंबा, तिवालुन बहुत लंबे, बहुत ज्यादा लंबे। कसीरुन छोटा, किसारुन बहुत छोटे। कबीरुन एक बड़ा यानी वाहिद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। किबारुन जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज्यादा जो हैं वो बड़े। सगीरुन एक छोटा, सिगारुन ज्यादा छोटे यानी मिकदार में ज्यादा छोटे। सकफुन छत के लिए इस्तेमाल होता है, एक छत। सकूफुन बहुत ज्यादा छतें। मिरवाहतुन एक पंखा। मरावीहुन बहुत ज्यादा पंखे। सरीरुन चारपाई। सुरूरुन सुरूरुन ज्यादा चारपाइयाँ। शुब्बाकुन एक खिड़की। शबाबीकुन बहुत ज्यादा खिड़कियाँ। इसी तरह से ये देखें, शजरुन एक दरख्त। अशजारुन ज्यादा दरख्त। हदीकतुन एक बागीचा। हदाइकुन बहुत ज्यादा बागीचे। बुस्तानुन एक बाग। बसातीनुन बहुत ज्यादा बाग। अरीजुन चौड़ा। इराजुन ज्यादा चौड़े। इस्मुन नाम। अस्माउन ज्यादा नाम। शैउन एक चीज। अशियाउन बहुत ज्यादा चीजें। वराकुन एक कागज। औराकुन बहुत ज्यादा कागज। जिदारुन दीवार। जुदुरुन बहुत ज्यादा दीवारें। अब देखें, इस पूरे सफ़े के अंदर जो हमने वाहिद और जमा की एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं, ये जितनी भी जमा की एग्जाम्पल्स हैं वो सारी की सारी जमा मुकस्सर की हैं। आप देखेंगे कि वाहिद की कोई भी ऐसी यहाँ पे हालत नहीं है जो कि पूरी की पूरी जमा के अंदर सही सालम मौजूद हो या हमें नजर आए। उस्ताजुन से लेके जिदारुन जुदुरुन तक तमाम के तमाम जो हैं ये जमा मुकस्सर ही इस्तेमाल हुए हैं, जमा सालम नहीं है, क्योंकि जमा के अंदर वाहिद की शक्ल जो है वो सही सालम मौजूद नहीं है, टूट फूट का शिकार हो गई है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये सारी की सारी जमा मुकस्सर हैं, टूटी फूटी जमा की किस्म है, तो इसलिए ये जमा मुकस्सर कहलाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, नक्शे को कहते हैं हरीततुन। हरीततुन एक नक्शा। हराइतुन बहुत ज्यादा नक्शे। हरीततुन यानी पाकिस्तान का झंडा इन्होंने बनाया हुआ है, नक्शा सॉरी बनाया हुआ है, तो उसके नीचे जो हराइत यानी ज्यादा नक्शे हैं उसके लिए तो हमने देखा कि हरीततुन की अपनी असल हालत हराइतुन के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए ये भी जमा मुकस्सर ही की मिसाल है। नेक्स्ट आ जाए यहाँ पे फाकिहतुन। फाकिह इस्तेमाल होता है फल के लिए। तुफाहुन सेब के लिए इस्तेमाल होता है। फाकिहतुन कहते हैं फल के लिए, एक फल। फवाकिहुन बहुत ज्यादा फल। आगे मदरसतुन एक स्कूल। मदारिसुन बहुत ज्यादा स्कूल। तो यहाँ तक हमारे सामने मैक्सिमम जो हैं वो जमा मुकस्सर ही की मिसालें आई हैं। अब फिर आ जाए अस्माए इशारा की तरफ। अस्माए इशारा में हाजा, हाजा वाहिद मुज़क्कर करीब के लिए इस्तेमाल होता है और हाजिही वाहिद मोनस करीब के लिए इस्तेमाल होता है, और इन दोनों की जो जमा है वो हाउलाई। हाउलाई वाहिद जमा मुज़क्कर के लिए भी और जमा मोनस करीब के लिए भी, दोनों के लिए हाउलाई का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। इसी तरह से ज़ालिका ये वाहिद मुज़क्कर बाइद के लिए इस्तेमाल होता है और तिलका वाहिद मोनस बाइद के लिए, और इन दोनों की जो जमा है वो क्या है, उलाई का। अब यहाँ पे इशारात हम देख लेते हैं। दर्जा वाला फहरिस्त में जो वाहिद और जमा दर्ज हैं इन्हें ज़बानी याद कीजिए।
अरबी में जमा की दो किस्में हैं। पहली किस्म को जमा सालम कहा जाता है, जैसे मुस्लिमुन की जमा मुस्लिमून। देखिए जमा के अंदर वाहिद की शक्ल सही और सालम मौजूद रही है। मुस्लिमुन वाहिद, मुस्लिमून जमा, इसीलिए इसे ऐसी जमा को जमा सालम कहते हैं। जैसे आकिलुन से आकिलून, मुमिनुन से मुमिनून, काफिरुन से काफिरून। जबकि इसकी बेजुज जो है वो देखें कि जमा की दूसरी किस्म को जमा मुकस्सर कहते हैं। जमा मुकस्सर के लफ्जी माना है टूटी हुई जमा, यानी ब्रोकन जो है टूटी हुई, उसकी अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं है। सबक के शुरू में वाहिद और जमा की जो फहरिस्त दी गई है, इसमें तलामीज़ा से हिसान तक तमाम अस्माए जमा इसी किस्म यानी जमा मुकस्सर से ताल्लुक रखते हैं। फिलहाल हम आपको जमा मुकस्सर का इस्तेमाल ही बताएंगे। इस नाम का सबब यह है कि ऐसी जमा के अंदर वाहिद की असली शक्ल कायम नहीं रहती, बल्कि वाहिद के हरूफ टूट जाते हैं, जैसे किताबुन से कुतुबुन, वलादुन से औलादुन। अब जब हम इसके मुरक्कबात पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी हमें कवायद मुख्तलिफ अंदाज से हमें नजर आएंगे कि किस तरह से जमा मुकस्सर है तो उसके साथ हम किस तरह से कौन कौन से रूल्स इस्तेमाल होंगे। जमा सालम है तो वो कैसे होंगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि औलादुन सिगारुन, औलादुन यहाँ पे जमा मुकस्सर है तो यहाँ पे सिगारुन क्या है, ये इसकी सिफ्त बयान हो रही है। तो ये दोनों औलादुन भी जमा मुकस्सर है और सिगारुन भी जमा मुकस्सर है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे मौसूफ जमा मुकस्सर है तो उसकी सिफ्त भी जमा मुकस्सर में ही आएगी। अशजारुन तिवालुन, लंबे दरख्त। अब अशजारुन क्या है, जमा मुकस्सर है तो उसकी सिफ्त जो है ये भी जमा मुकस्सर में आ रही है। मनाजिलुन किबारुन, बड़े घर। मनाजिल मंजिल की जमा है, किबारुन ये भी इसकी मनाजिलुन घर, किबारुन बड़े। कबीरुन की जमा किबारुन है। अतफालुन हिसानुन, अतफालुन बच्चे, हिसानुन अच्छे बच्चे, अतफालुन हिसानुन। अब देखें अतफालुन जमा मुकस्सर है तो इसकी सिफ्त भी जमा मुकस्सर में है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी मौसूफ इस्तेमाल हो रहे हैं वो जमा मुकस्सर की सूरत में आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद देखेंगे कि उसकी जो सिफात हैं वो भी सारी की सारी जमा मुकस्सर ही में आ रही हैं। अब मैं इसको आपके सामने रखती जाती हूँ एग्जांपल्स को, आप इन पे गौर कीजिएगा कि जितने भी जमा हैं मौसूफ की सूरत में आ रहे हैं। रिजालुन तो इनकी आगे सिफ्त क्या है, किसारुन छोटे मर्द। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स पे आप तवज्जो कीजिएगा कि जमा मुकस्सर में आ रहे हैं मौसूफ, और उसी अंदाज में उनकी सिफात भी जमा मुकस्सर ही में आ रही हैं। तुरुकुन इराजुन चौड़े रास्ते, बसातीनुन किबारुन बड़े बागीचे, अकलामुन जुदुदुन नए कलम, सुरुरुन सिगारुन छोटी चारपाइयाँ, नवाफिजुन इराजुन चौड़ी खिड़कियाँ, अश्याउन किबारुन बड़ी चीज़ें, जुदुरुन तिवालुन लंबी दीवारें, मराविहुन सिगारुन छोटे पंखे, हराइतुन किबारुन बड़े नक्शे। हराइत हरीततुन की जमा है, किबारुन कबीर की जमा है, हराइतुन किबारुन बड़े नक्शे। सुवरुन हिसानुन अच्छी तस्वीरें, करासीयुन जुदुदुन नई कुर्सियाँ, अस्माउन हिसानुन अच्छे नाम, गुरफुन सिगारुन छोटे कमरे। आप पहले पढ़ चुके हैं कि मौसूफ वाहिद हो तो सिफ्त भी वाहिद होती है, मौसूफ जमा हो तो सिफ्त भी जमा होती है। दर्जा बाला मिसालों पर गौर कीजिए, इन सब मिसालों में मौसूफ जमा मुकस्सर है तो सिफ्त भी जमा मुकस्सर है। आप देखें ये चौथा चैप्टर जो है मरकब तौसीफी का, उस पर अगर हम तवज्जो करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने पढ़ा था कि जैसा मौसूफ होगा वैसी ही उसकी सिफ्त होगी। मौसूफ अगर वाहिद हो तो उसकी सिफ्त भी वाहिद में आती है, मौसूफ अगर तस्निया में हो तो सिफ्त भी तस्निया में आएगी, मौसूफ अगर जमा में हो तो सिफ्त भी जमा में आएगी।
मौसूफ अगर जमा सालम में है तो सिफ्त भी वैसी ही आएगी और इसी तरह से अगर मुकस्सर में है तो सिफ्त भी वैसी ही आएगी। लेकिन यहाँ पे एक और रूल भी आपको बताती चलूँ कि अगर मौसूफ जमा मुकस्सर हो तो उसकी सिफ्त जो है वाहिद मोनस की सूरत में भी आ जाती है। अभी आगे हम लेसन पढ़ेंगे तो हमें इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाएगा। इसी तरह से मौसूफ और सिफ्त में हर लिहाज से मुताबिकत पाई जाती है, यानी जैसा मौसूफ होगा वैसी ही उसकी सिफ्त होगी। अब नेक्स्ट नीचे आ जाएं, आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी मौसूफ हैं ये जमा मुकस्सर हैं, जबकि उनकी सिफात क्या है, कुतुबुन मुफीदतुन। मुफीदतुन यहाँ पे क्या है, वाहिद मोनस है। मुफीदतुन वाहिद मोनस क्यों है, मुफीदतुन इसके आखिर में बोलता है इसलिए ये वाहिद मोनस है। तो हम क्या कहेंगे कि मौसूफ अगर जमा मुकस्सर में हो तो उसकी सिफ्त वाहिद मोनस भी ला सकते हैं और जमा मुकस्सर भी ला सकते हैं। कुतुबुन मुफीदतुन मुफीद किताबें, अशजारुन तवीलतुन लंबे दरख्त, मनाजिलुन कबीरतुन बड़े घर, सुवरुन हसनतुन अच्छी तस्वीरें, हदाइकुन जमीलतुन खूबसूरत बागात, तुरुकुन आरीजतुन चौड़े रास्ते, बसातीनुन कबीरतुन बड़े बागीचे, अकलामुन जदीदतुन नए कलम, सुरुरुन सगीरतुन छोटी चारपाइयाँ, नवाफिजुन आरीजतुन चौड़ी खिड़कियाँ, अशियाउन कबीरतुन बड़ी चीज़ें, जुदुरुन तवीलतुन लंबी दीवारें, मराविहुन सगीरतुन छोटे पंखे, हराइतुन कबीरतुन बड़े नक्शे, सुवरुन हसनतुन अच्छी तस्वीरें, करासीयुन जदीदतुन नई कुर्सियाँ, अस्माउन हसनतुन अच्छे नाम, गुरफुन सगीरतुन छोटे कमरे। ऊपर की मिसालों में मौसूफ बाइना वही हैं जो इससे पहले पैराग्राफ की मिसालों में थे। अलबत्ता यहाँ पे हर मौसूफ जो है उसकी सिफ्त जमा मुकस्सर की बजाय वाहिद मोनस है। बस इन दो सेटों से ये कायदा बरामद हुआ कि अगर मौसूफ जमा मुकस्सर हो तो इसकी सिफ्त जमा मुकस्सर भी हो सकती है और वाहिद मोनस भी। यही सूरत जुमलों में पैदा होगी। मिसालें मुलाहिजा कीजिए। अल-कुतुबु मुफीदतुन मुफीद किताबें, अल अशजारु तवीलतुन लंबे दरख्त, अल मराविहु जदीदतुन नए पंखे, अल मदारिसु वासिअतुन वसी स्कूल या वसी मदरसे, अस्सक़ूफ़ु जमीलतुन खूबसूरत छतें, अस्सुवरु कसीरतुन ज़्यादा तस्वीरें, अत्तुरुकु इराजुन चौड़े रास्ते, अस्सुवरु जमीलतुन खूबसूरत तस्वीरें, अल अत्फ़ालु सिगारुन छोटे बच्चे, अल असातिज़तु किबारुन बड़े उसातिज़ा, अन नवाफिज़ु इराजुन बड़ी खिड़कियाँ, अल गुरफ़ु ज़य्यिक़तुन तंग कमरे या कमरे तंग हैं, अल फ़वाकिहु रहीसतुन फल सस्ते हैं, अल हराइतु मुफीदतुन नक्शे मुफीद हैं, अन नवाफिज़ु किबारुन खिड़कियाँ बड़ी हैं, अल करासियु कदीमतुन कुर्सियाँ पुरानी हैं, अल जुदुरु तिवालुन दीवारें लंबी हैं, अल मराविहु जुदुदुन पंखे नए हैं, अल मनाजिलु सिगारुन घर छोटे हैं, अल अत्फ़ालु हिसानुन बच्चे अच्छे हैं, अस्सुरुरु किसारुन चारपाइयाँ छोटी हैं। यानी यहाँ पे अगर हम सेंटेंसेस की सूरत में देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें क्या चीज़ समझ आती है कि यानी अल-कुतुबु मुफीदतुन किताबें मुफीद हैं, या फिर अल अशजारु तवीलतुन दरख्त लंबे हैं, अल मराविहु जदीदतुन पंखे नए हैं, मदारिस कशादा हैं या छत खूबसूरत हैं, तस्वीरें ज़्यादा हैं या रास्ते चौड़े हैं, तस्वीरें खूबसूरत हैं। यहाँ इनमें से हर एक में अगर हम देखते हैं
کہ ان کی خبر جو ہے یہ واحد مونس میں آ رہی ہے. بعض جملوں میں خبر جمع مکسر بھی ہے. آپ نے دیکھا، توجہ کیجئے کہ یہاں پہ الکتب مفیدۃ، الکتب کتابیں مفیدۃ مفید ہیں، تو یہاں پہ کتابیں مفید ہیں، تو اس کی جو خبر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ واحد مونس کی صورت میں آ رہی ہے. اور اسی طرح سے الاشجار طویلۃ، درخت لمبے ہیں، تو اس میں کیا چیز آتی ہے؟ طویلۃ. یہاں پہ بھی خبر کیا ہے؟ واحد مونس کی صورت میں ہے. لیکن اسی کے نیچے اگر آپ لوگ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیے گا الطرق اراز، اراز کیا ہے؟ یہاں پہ خبر جمع مکسر میں آ رہی ہے، یعنی اگر اس کا مبتدا جو ہے جمع مکسر ہے تو اس کی خبر بھی جمع مکسر ہی میں آئے گی. النوافذ عراض، کھڑکیاں چوڑی ہیں، تو یہاں پہ کیا چیز ہے کہ عراض یہ بھی جمع مکسر ہے. النوافذ کھڑکیاں، عراض چوڑی ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ اگر جملوں کا یہاں پہ جو مجموعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، کچھ جملوں کی جو خبر ہے وہ واحد مونس کی صورت میں آ رہی ہے اور بعض جملوں کی خبر جو ہے وہ جمع مکسر کی صورت میں آ رہی ہے. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے جو ہیں، ہمیں صحیح اس کی پہچاننے میں دقت محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ مفیدۃ، طویلۃ، جدیدۃ، کثیرۃ، جمیلۃ، واسعۃ، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ یہ واحد مونس کی ایگزامپلس ہیں. اور اسی طرح سے کبار، عراض، جدد، طوال، صغار، حسان، حصار، یہ سارے کے سارے جمع مکسر ہیں. تو یہ قاعدہ ہمیں یاد رہنا چاہیے. آگے ہے ماذا عندک، آپ کے پاس کیا ہے؟ عندی کتب، میرے پاس کتابیں ہیں. هل هذه کتب مفیدۃ، کیا یہ مفید کتابیں ہیں؟ نعم هذه کتب مفیدۃ، ہاں یہ مفید کتابیں ہیں. هل هذه کتبک، کیا یہ تمہاری کتاب ہے؟ نعم هذه کتبی، ہاں یہ میری کتابیں ہیں. هذه صوری، یہ میری تصویر ہے. تلک صورھا، وہ اس مونس کی تصویر ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ ضمیر استعمال ہو رہی ہے. تلک صورھا، وہ اس مونس کی تصویر ہے. ہناک صور کثیرۃ، وہاں پہ بہت سی تصویریں ہیں. ما اسماء الطلاب، طالب علموں کے نام کیا ہیں؟ اسماء الطلاب احمد و محمود و سعید، طالب علموں کے نام احمد، محمود اور سعید ہیں. الطلاب فی المدرسۃ، طالب علم مدرسہ میں ہیں. هذه اسماء الطلاب، یہ طالب علموں کے نام ہیں. هذه اشیاء الطلاب، یہ طالب علموں کی چیزیں ہیں. هذه خرائط و اقلام و کتب، یہ نقشے، قلم اور کتابیں ہیں. هذا منزل واسع، یہ وسیع منزل ہے. تلک منازل واسعۃ، وہ کشادہ یا کھلے گھر ہیں. هذه منازل جمیلۃ، یہ خوبصورت گھر ہیں. تلک نوافذ المدرسۃ، وہ اسکول کی کھڑکیاں ہیں. نوافذ المدرسۃ واسعۃ، اسکول کی کھڑکیاں کشادہ ہیں. تلک اعلام المدارس، وہ مدرسوں کے جھنڈے ہیں. الاعلام فوق المدارس، جھنڈے فوق المدارس، اسکولوں کے یا مدارس کے اوپر ہیں. اعلامنا فوق مدارسنا، ہمارا جھنڈا ہمارے مدرسہ کے اوپر ہے. اولادی فی المدرسۃ، میرے بچے اسکول میں ہیں. الاولاد فی المدارس، بچے اسکولوں میں ہیں. مدارس یا مدرسہ، یہ مدرسہ کے لیے یا اسکول کے لیے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اولادہ فی المنزل، اس کے بچے فی المنزل گھر میں ہیں. اشجار بیتنا کثیرۃ، ہمارے اشجار درخت، بیتنا ہمارے گھر میں، کثیرۃ چھوٹے ہیں.
हमारे घर में दरख्त छोटे हैं। अल अशजारुल कसीरतु फी बैतिना, छोटे दरख्त हमारे घर में हैं। अल अशजारुल कसीरतु, छोटे दरख्त फी बैतिना, हमारे घर में हैं। अर रिजालु फिल गुरफी, आदमी कमरे में हैं। अल गुरफु कसीरतुन व वासियतुन, कमरे ज्यादा और वसी हैं। हाजिही मराविहु जदीदतुन, ये नए पंखे हैं। अल मराविहु तहत सक्फी, पंखे छत के नीचे हैं। मराविहु सक्फी जमीलतुन, छत के पंखे जमीलतुन, खूबसूरत हैं। इंदी कुतुबुका, मेरे पास तुम्हारी किताब है। इंदी कुतुबुका, मेरे पास तुम्हारी किताब है। मा हाजिही, ये क्या है। हाजिही हरीततुन, ये नक्शा है। हाजिही हरीततु पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का नक्शा है। तिलका हरीततु सऊदिया, वो सऊदी अरब का नक्शा है। अल हराइतु मुफीदतुन, नक्शे मुफीद हैं। तिलका अबवाबुन वासियातुन, वो वसी दरवाजे हैं या वो कशादा दरवाजे हैं। अर रिजालु तिवालु इंदल अबवाब, लंबे आदमी दरवाजों के पास हैं। हाजा मकतबी, ये मेरा मकतब है या ये मेरा मेज है। फौकल मकतबी अकलामुन कसीरतुन, मेज के ऊपर बहुत ज़्यादा कलम हैं। अल अकलामु जदीदतुन, कलम नए हैं। अल मकातिबु जुदुदुन, मेज नए हैं। अल कुतुबु समीनतुन, किताबें कीमती हैं। अल करासियु तहतल अशजारी, कुर्सियाँ दरख्त के नीचे हैं। अल अशजारु फिल हदीकती, दरख्त बागीचे में हैं। अल अशजारु तवीलतुन, दरख्त लंबे हैं। हल इंदहा वलदुन, क्या उसके पास वलदुन लड़का है। नाम इंदहा वलदुन, हाँ उसके पास लड़का है। बल औलादुन, बल्कि लड़के हैं। औलादुहा किबारुन, उसके बच्चे बड़े हैं। औलादु का सिगारुन, तुम्हारे बच्चे छोटे हैं। अब यहाँ पे देखें, हदाइकु पाकिस्ताना जमीलतुन, हदाइकु बागीचे, पाकिस्ताना पाकिस्तान के, जमीलतुन खूबसूरत हैं। पाकिस्तान के बागीचे खूबसूरत हैं। व अशजारुहा कसीरतुन, और इसके दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे देखें, हाँ यहाँ पे ज़मीर इस्तेमाल हो रही है। अब हमने देखा कि यहाँ पे छठे लेसन तक आते आते मुसलसल पहला लेसन जो है अस्माई इशारा करीब और बाईद वो साथ साथ चल रहा है। इसी तरह से सेकंड चैप्टर जो है वो अज़्ज़माइरुल मुत्तसिला का वो भी साथ साथ आगे चलता जा रहा है। इसी तरह से अल-मुरक्कबुल इज़ाफ़ी या अल-मुरक्कबुल तौसीफ़ी ये भी साथ साथ हमें अगले असबाक में नज़र आते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें जितना पहले लेसन्स को अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से समझ लेंगे उसी अंदाज से हमारे अगले लेक्चर्स बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, जमीलतुन क्या है, मुरक्कब तौसीफ़ी का इस्तेमाल हो रहा है। हदाइकु पाकिस्ताना, पाकिस्तान के बागीचे, हदाइकु पाकिस्ताना, पाकिस्तान के बागीचे, जमीलतुन खूबसूरत हैं। वाशजारुहा कसीरतुन, हाँ यहाँ पे ज़मीर इस्तेमाल हुई है, ज़मीर मुत्तसिल। अशजारुहा, उस मोनस के यानी पाकिस्तान के दरख्त कसीरतुन ज़्यादा हैं। तहदल अशजारी करासीयुन, दरख्तों के नीचे करासीयुन कुर्सियाँ हैं। फौकल कुरासी रिजालुन, कुर्सियों के ऊपर रिजालुन आदमी हैं। अब देखें यहाँ पे तख्ता और फौका ये दोनों क्या हैं, ये ज़रूफ हैं। यानी इनके आने के बाद जैसे हरूफ जारा के आने के बाद जो अस्मा हैं उनके नीचे ज़ेर आ जाती है, इसी तरह से ज़रूफ फौका, तहता, अमामा, हल्फा, इंदा, कबला,
بعد ये सारे के सारे जो ज़रूफ हैं इनके बाद जो अस्मा आएंगे उनके नीचे भी ज़ेर आएगी। अमामर रिजाली फवाकिह, लोगों के सामने, अमामर रिजाली आदमियों के सामने, फवाकिह फल हैं। अल-फवाकिहु लजीज़तुन व मुफीदतुन, फल मज़ेदार और मुफीद हैं। मा हाज़िही, ये मोनस क्या है? हाज़िही सुरुरुन जदीदतुन, सुरुरुन चूँकि जमा मुकस्सर है इसलिए इसके लिए इसम इशारा जो है वो कौन सा लगा है? वाहिद मोनस का लगा है, वाहिद मोनस करीब का। हाज़िही सुरुरुन जदीदतुन, ये चारपाइयाँ नई हैं। ऐना सुरुरुल औलाद, लड़कों की या बच्चों की चारपाइयाँ कहाँ हैं? सुरुरुल औलादी फी गुरफिल औलाद, लड़कों की या बच्चों की चारपाइयाँ फी गुरफिल औलाद, बच्चों के कमरों में हैं। फी गुरफिल औलाद, बच्चों के कमरे में हैं। बच्चों की चारपाइयाँ या लड़कों की चारपाइयाँ लड़कों के कमरे में हैं। हल इंदका गुरफतुन, क्या तुम्हारे पास कमरा है? नाम इंदी गुरफतुन, हाँ मेरे पास कमरा है। बल गुरफुन कसीरतुन, बल्कि बहुत ज़्यादा कमरे हैं। हाजा हाजर राजुलु, ये आदमी या ये मर्द। हाउलाइर रिजालु, ये सब मर्द। अब देखें यहाँ पे हाजा वाहिद मुज़क्कर करीब के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जबकि हाउलाई ये किसके लिए है? जमा मुज़क्कर और मोनस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। हाउलाई जमा मुज़क्कर करीब के लिए भी और जमा मोनस करीब के लिए भी। हाउलाई रिजालु, ये सब मर्द। हाज़िहिल मरअतु, ये औरत। हाउलाई निसाउ, ये औरतें। अब देखिए रिजाल उनके साथ भी हाउलाई लगा है और निसा उनके साथ भी हाउलाई लगा है। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चली कि जमा मुज़क्कर हो या जमा मोनस हो, दोनों के लिए हाउलाई का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा अगरचे वो करीब हों। इसी तरह से नीचे देखिएगा, ज़ालिकल किताबु, वो किताब। तिलकल बिंतु, वो लड़की। ज़ालिकल किताबु, वो किताब। उलाइकल कुतुबु, वो किताबें। उलाइकल कुतुबु, वो किताबें। तिलकल बिंतु, वो लड़की। उलाइकल बनातु, वो लड़कियां। अब देखिए ज़ालिका और तिलका ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ज़ालिकल किताबु या तिलकल बिंतु, ज़ालिका यहाँ पे मुज़क्कर बाइद के लिए इस्तेमाल हुआ है और तिलका मोनस बाइद के लिए इस्तेमाल हुआ है। और मुज़क्कर हो या मोनस हो, इन दोनों की जो जमा होगी वो उलाइका ही आएगी मुज़क्कर बाइद के लिए या मोनस बाइद के लिए। उलाइकल कुतुबु, वो किताबें। उलाइकल बनातु, वो लड़कियां। अब यहाँ पे ऊपर की मिसालों में जो मरक्कबात हैं, मरक्कबात यानी जो सेंटेंसेस बने हुए हैं, जो दो या दो से ज़ायद कलिमात के मजमूए हैं, इनमें से हर एक दो अज्जा पर मुश्तमिल है। पहला जुज़ इसमें इशारा है, हाजा ज़ालिका वगैरह, और दूसरा जुज़ कोई इसम जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, इसको मुशारुन इलैहि कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाजा इसमें इशारा है और अर्रजुलु मुशारुन इलैहि है। हाज़िही इसमें इशारा है और अल मरअतु मुशारुन इलैहि है। इसी तरह से ज़ालिका इसमें इशारा, अल किताबु मुशारुन इलैहि, तिलका इसमें इशारा और अलबिंतु मुशारुन इलैहि है। इसी तरह से इसकी जो जमा है उसमें भी आपने देख लिया, हाउलाई और रिजालु ये सब मर्द, हाउलाई निसाउ ये सब औरतें। तो यहाँ पे हाउलाई ये क्या है, इसमें इशारा है और अर्रिजालु अन्निसाउ मुशारुन इलैहि है। इसी तरह से उलाइकल कुतुबु, उलाइकल बनातु में उलाइका इसमें इशारा बाइद, जमा मुज़क्कर बाइद और जमा मोनस बाइद दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और अल कुतुबु वो किताबें, अल बनातु वो लड़कियां, ये मुशारुन इलैहि कहलाएंगे। जाहिर है कि जिसकी तरफ इशारा कर दिया जाए वो इसम मखसूस हो जाएगा, लिहाजा मुशारुन इलैहि हमेशा मारफा होता है, चाहे वो वाहिद हो या जमा हो। इन मिसालों से ये भी मालूम हो रहा है कि मुशारुन इलैहि वाहिद है तो इसमें इशारा भी वाहिद है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने देखा कि अगर मुशारुन इलैहि जो है
वो वाहिद हो तो उसका ये जो इसमें इशारा है वो भी वाहिद में आएगा। अलमरातु एक की बात हो रही है तो इसका इशारा भी वाहिद में आया है। अल किताबु वाहिद है, इसके लिए इशारा भी वाहिद है। अल बिन्तु वाहिद है और इसका इशारा भी वाहिद में आ रहा है। लेकिन हमने देखा कि जब मिशारुन इलैहि ज्यादा चीजों पे मुश्तमिल हो, वो जमा की सूरत में हो, तो उसके लिए जमा का ही सीगा पीछे लेके आएंगे, उसके पीछे हम वाहिद का सीगा नहीं लगाएंगे। जैसे हाउलाई और उलाइका का लफ्ज हमारे सामने है। आज के लिए इतना ही काफी है ताकि हमें अलजमा, उसमें जमा की अकसाम, जमा सालम और जमा मुकस्सर। जमा सालम के बनाने का तरीका क्या है, उसके आखिर में वाओ और नून लगा देंगे तो जमा सालम बन जाएगा। जबकि जमा मुकस्सर जो है इसमें वाहिद की शक्ल और सूरत अपनी असली हैत जो होती है वो जमा के अंदर बरकरार नहीं जाती, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये जमा मुकस्सर है। जमा सालम और जमा मुकस्सर ये पढ़ लिए, इसके एग्जाम्पल्स हमने देख ली हैं। तो अब इनको प्रॉपर तरीके से समझना है। वाहिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।